basically three types of the financial decision. The number one is investment decision, number two finance decision, number three dividend decision. Investment decision include the two types of dividend, that is a capital busting decision as well as the working capital decision. Whereas financing decision covered the appropriate capital structure in which we study the debt source of the finance and the equity source of the finance. And the third and important financial decision, that is a dividend decision. Under dividend decision we discussed and we estimate the distribution of dividend with ascertaining how much the profit earned by the company is to be distributed among shareholder and how much of it should be retained in the business. In the last video we discussed the two important topic related to the financial management, that is a dividend decision and the various factors affecting dividend decision, and concept of financial planning. Financial planning means the preparation of the financial blueprint of an organization future operation, as well as the objective of financial planning. There are basically two objectives of the financial planning, that is to ensure availability of funds whenever these are required, and number two, to see that the firm does not raise resources unnecessarily. So today we will move to the next topic of this chapter, that is a concept of capital structure. You know very well, when we are talking about the investment decision and thereafter we discuss the financing decision. So financing decision relates to the relative proportion of various source of finance. यानी फाइनेंसिंग डिसीजन की हेल्प से हम ये डिसाइड करते हैं कि बिजनेस में कितना शेयर होल्डर फंड इन्वेस्ट होना चाहिए और कितना बोरोड फंड इन्वेस्ट होना चाहिए. It means a business has to decide the proportion of fund to be raised from sources which serve the purpose most effectively. So financial decision is concerned with how much finance is to be raised from which source. So basically financial decision जो है वो business के capital structure को focus करता है कि business का capital structure कैसा होगा. That's why we also discuss in this chapter, that is concept of capital structure. So let's discuss it. What is capital structure? The term capital structure refers to the composition of the amount of long-term financing. In other words, we can say capital structure refers to the mix between the owner's fund and borrowed fund, or it represents the proportion of debt capital and equity capital to make up the total capital of the firm. यानी कि capital structure जो है वो बिजनेस के लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के कॉम्पोजिशन को फोकस करता है, एज वेल एज कैपिटल स्ट्रक्चर हमें बताता है कि हमारी टोटल कैपिटल में कितना पार्ट ओनर्स फंड का है एंड हाउ मेनी पार्ट्स रिलेटेड टू द बोरोड फंड. एट द एंड वी कैन से दैट द कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ मिक्स्ड proportion of debt capital and equity capital to make up the total capital of the firm. So capital structure of the business affects profitability and financial risk. यानी capital structure किसी business की profitability को affect करता है और financial risk को भी denote करता है. So there are basically two components of capital structure. The two component of financial structure, capital structure is, the first one is the owner shareholder funds, that is equity. That refers to share capital, reserve and surplus and retained earning. यानी अगर कंपनी इक्विटी के थ्रू या ओनर शेयर होल्डर फंड्स के थ्रू कैपिटल अरेंज करना चाहेगी, सो उसके पास कई सोर्सेज हैं, दैट इज़ अ शेयर कैपिटल, रिजर्व्स के थ्रू, सरप्लस के थ्रू एंड रिटेन अर्निंग के थ्रू वो कैपिटल अरेंज कर सकती है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बोरोड फंड एंड डेब्ट्स, it is a second component of the capital structure. It refers to the finance raised from the debenture, पब्लिक डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म लोन्स. यानी अगर हम बोरोड फंड की बात करते हैं तो बोरोड फंड में बेसिकली हमारे पास कई तरह के सोर्स ऑफ फाइनेंस अवेलेबल हैं. जैसे हम डिवेंचर के थ्रू पैसा अरेंज कर सकते हैं, पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू पैसा अरेंज कर सकते हैं एंड लॉन्ग टर्म लोन्स के थ्रू पैसे अरेंज कर सकते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू द कैपिटल स्ट्रक्चर इज द कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. So capital structure can be calculated as debt equity ratio, that is the debt upon equity, or
डेप्ट अपॉन डेप्ट प्लस इक्विटी एज अ डेप्ट आउट ऑफ द टोटल कैपिटल। इसमें इट मीन्स हम डेप्ट इक्विटी के रेशियो से भी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को फाइंड आउट कर सकते हैं कि सपोज अगर कंपनी में 3 लाख रुपीज़ इन्वेस्टेड हैं और 3 लाख में से अगर 2 लाख रुपीज़ ओनर्स फंड है और 1 लाख रुपीज़ इज़ अ बोरोड फंड है, सो द debt equity ratio is 1:2. The formula is debt equity ratio is debt upon equity, and the another formula is debt upon debt plus equity. Debt plus equity equals to the total capital of the firm. So we can say the debt equity ratio will be find out with the formula is debt upon equity. Higher use of debt increase the financial risk. Financial risk is the chance that a firm would fail to meet its payments obligation. It arises the higher uses of debt. अगर हम हाई यूज़ कर रहे हैं डेप्ट का तो वो कहीं ना कहीं हमारी फाइनेंशियल रिस्क को बढ़ा देता है, क्योंकि वो पैसा हमारा नहीं होता है बेसिकली, और उसमें हमें फिक्स्ड ऑब्लिगेशन दैट इज़ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। यानी हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर डेप्ट कैपिटल रखते हैं तो हमारे लिए फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज़ होता है। फाइनेंशियल रिस्क बढ़ने से हम अपने पेमेंट्स जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको पे करने में कभी कभी अनसक्सेसफुल रहते हैं, बिकॉज ऑफ क्योंकि ये फिक्स्ड ऑब्लिगेशन होता है, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है हमें देना ही देना है। बट डिविडेंड के केस में हम तभी प्रोवाइड करते हैं जब हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट इज अवेलेबल। ओके, द नेक्स्ट वन इज ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। इफ एनी क्वेश्चन इज आस्क्ड अबाउट दी व्हाट इज द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, सो an optimal capital structure will be attained when the proportion of debt and equity is such that it result in increase the value of the equity share, increase in the shareholder wealth. आपके मन में प्रश्न था जब हम लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट किया था, तो यू नो वेरी वेल वी ऑलरेडी डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. What are the objective of the financial management? There are basically two objectives of the financial management. That is a primary objective and secondary objective. अगर हम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव देखें फाइनेंशियल मैनेजमेंट का तो वो यही था, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ शेयर, दैट इज़ अ इंक्रीज इन शेयर होल्डर्स वेल्थ. यानी शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज़ करना है, यानी शेयर होल्डर्स के पास जो शेयर है उसकी प्राइस को इंक्रीज़ करना है. यानी एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर वही है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में सक्सेसफुल हो. यानी द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर is a proportion of debt and cap equity is such that it result in increase in the value of the equity share. So it is a very important explanation of the optimal capital structure. हम एक कैपिटल स्ट्रक्चर को ऑप्टिमल कब कहेंगे? जब वो किसी भी कंपनी के इक्विटी शेयर की प्राइस को इंक्रीज़ करेगा या फिर शेयर होल्डर वेल्थ को इंक्रीज़ करेगा. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू दिस टॉपिक, दिस सब चैप्टर, that is a financial leverage. What is financial leverage? The amount of total debts in overall capital is called financial leverage. Listen carefully. What is financial leverage? Amount of total debt in overall capital is called financial leverage. How we will calculate the financial leverage? Total capital में डेप्ट का जितना फॉर्म होता है वो कंपनी की फाइनेंशियल लिवरेज कहलाती है, क्योंकि हायर द डेप्ट फाइनेंशियल रिस्क भी इंक्रीज़ होता है. यहाँ लीवरेज का मतलब एक तरह से फाइनेंशियल डिपेंडेंसी से है कि हम कितना सेल्फ डिपेंडेंट ना होकर आउटसाइडर्स पे डिपेंड कर सकते हैं. सो फाइनेंशियल लीवरेज मेजर दी डिपेंडेंसी ऑन द बोरोड फंड, यानी कंपनी बोरोवर्स पे कितना डिपेंडेबल रहती है, ये फाइनेंशियल लीवरेज एक्सप्लेन करता है. सो वी कैन से दैट व्हाट इज़ फाइनेंशियल लीवरेज? फाइनेंशियल लीवरेज is the amount of total debt in the overall capital is called financial leverage. When financial leverage increases, the cost of fund decline but risk increases. देखिए अभी मैंने जस्ट बताया कि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा बोरोड फंड रखते हैं तो यू कैन सी डैट यू फेस अ लॉट्स ऑफ अनसर्टेनिटी, यू फेस द फाइनेंशियल रिस्क. बट in the last class 11th you already discussed the famous line, profit is the reward of risk. high risk high profit. यानी हमारे पास डेप्थ ज़्यादा होगा तो रिस्क ज़रूर ज़्यादा होगा, बट उसके कंपैरिजन प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा. ओके, कैसे होगा? बिकॉज ऑफ
जब आप ज़्यादा रिस्क लेंगे तो आपके पास ओनर्स फंड यूज़ करने के ज़्यादा अपेक्षा आप बोरोड फंड पे ज़्यादा डिपेंड रहेंगे। उनको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे कर देंगे और जितना ज़्यादा आप उस पैसे से अर्न करोगे वो फर्म की प्रॉफिट कहलाएगी। लेकिन डिविडेंड इज़ टोटली बेस्ड ऑन योर प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट इंक्रीज होता है सो शेयर होल्डर्स भी ज़्यादा प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि द रेट ऑफ डिविडेंड इज़ नॉट प्री डिसाइडेड बट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ प्री डिसाइडेड। और भी बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स हैं जिसके कारण हम ये कह सकते हैं, वी कैन से दैट द डेब्ट कैपिटल इज़ मच मोर प्रॉफिटेबल एज कंपेयर टू द ओनर्स फंड फॉर द कंपनी, फॉर द फर्म। सो वी कैन से दैट द when financial leverage increases, the cost of fund decline. It means cost of fund decline means the profitability of the business will increase but risk increases. So next we discuss the favorable financial leverage. What is a favorable financial leverage? कब financial leverage हमारा favorable होगा और कब हमारा financial leverage unfavorable रहेगा, आइए उस पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। फाइनेंशियल लीवरेज फेवरेबल का मतलब होता ये है कि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा डेप्ट इन फॉलो कर रहे हैं और हमारे लिए वो प्रॉफिटेबल है, सो इट मीन्स फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज। और जब हम ज़्यादा डेप्ट यूज़ कर रहे हैं बट वो सिचुएशन हमारे लिए अच्छी नहीं होती है, किस सिचुएशन में, आइए उस पर हम लोग बात करते हैं। द फर्स्ट केस, द केस ऑफ फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज। Favorable financial leverage is a condition when rate of return is more than the cost of debt. It is a very important part of you. Favorable financial leverage कब होगा? As you say that जब हम पैसा अरेंज करते हैं, ये एक फर्म है, उसने पैसा अरेंज किया with the help of debenture at the rate of 6% interest, और उस पैसे को उसने इन्वेस्ट कर दिया और वहाँ उसको ROI हो रहा है 10%. So we can say that the cost of debt is lower than the return on investment. So in this situation we can say that the favorable financial leverage. So when favorable financial leverage, when ROI is more than, rate of return is more than the cost of debt. यानी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए in which case the financial leverage is favorable, तो financial leverage becomes favorable when the rate of return is more than the cost of debts. So इसी चीज़ को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. प्लीज़ नोट डाउन दिस एग्जाम्पल इन योर कॉपी as well as the explanation given in this images. So let's us take the example of companies ABC. 3 कंपनी है आपके पास, कंपनी ए, बी, सी, और इन सब के फाइनेंशियल लीवरेज को आप मेज़र करना है कि किसका फाइनेंशियल लीवरेज फेवरेबल है और किसका फाइनेंशियल लीवरेज अनफेवरेबल है, या इन वी कैन से दैट तीनों कंपनी में से फाइनेंशियल लीवरेज किसका सबसे ज़्यादा फेवरेबल है. सो द फर्स्ट कंपनी ने टोटल कैपिटल उसकी है 10 लाख रुपए. ओके सर. द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी ए इज़ 10 lakh. The total capital of company B is 10 lakh and as well as the total capital of company C is 10 lakh. यानी तीनों कंपनी की जो टोटल कैपिटल है वो सेम है. बट कंपनी ए अरेंज 10 lakh फ्रॉम द शेयर कैपिटल. यानी कंपनी ए ने 10 लाख रुपए जो अरेंज किया है वो पूरा का पूरा शेयर से अरेंज किया है. बट द कंपनी बी अरेंजेस 4 lakh from the shares and 6 lakhs from the debenture, as well as company C arranges 6 lakh from the share and 4 lakhs from the debenture या loan, and the rate of interest on loan is 15%. यानी हमने लोन जो लिया उस पर 15% का हमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा. and as well as the additional information given by the example is the EBIT. What is the EBIT? EBIT means earning before interest and tax. यानी एक ऐसी अर्निंग जिस पे चार्ज हुआ है ना तो टैक्स चार्ज हुआ है. What is interest? Interest means the payment to the creditor on their loans. यानी जब हम लोन्स लेते हैं अपने इन्वेस्टर्स से,
सो उसको हम फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं. सो EBIT में से सबसे पहले हम पे करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी पे द इंटरेस्ट. तो यू नो दैट इन कंपनी A, B and C, कंपनी A हैज़ नो एनी काइंड ऑफ लोन कैपिटल, यानी कंपनी A के पास कोई भी रुपए का लोन अवेलेबल नहीं है. यस सर, कोई भी नहीं है. यानी इस केस में हमने ये फाइंड आउट किया द EBIT ऑफ द कंपनी A, B and C इज 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख. अब मैं थोड़ा सा सॉल्यूशन पे जाने से पहले आपको पहले कुछ क्वेश्चंस की स्ट्रक्चर गिवन कर देता हूँ. देखिए इस क्वेश्चन में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिफ्रेंसिएशन. द सिमिलरिटीज़ बिटवीन कंपनीज A, B and C, दैट इज़ अ टोटल कैपिटल. जो टोटल कैपिटल है A, B, C तीनों की सेम है, यानी तीनों ने 10 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किया. दूसरी सिमिलरिटीज़ है द EBIT. तीनों कंपनी का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी सेम है, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख. ये हो गई सिमिलरिटीज़ एमंग द कंपनी A, B and C. And what are the differences among the A, B and C? The capital structure, because today we discuss the capital structure. What is the capital structure? The proportion of owned capital and debt capital in the total capital of the firm. यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर हमें ये बताता है कि कंपनी के टोटल कैपिटल में कितना पार्ट इक्विटी का है, कितना पार्ट डेप्ट का है. और ये तीनों कंपनी का डिफरेंट है. यस सर, कंपनी A ने 10 लाख रुपए पूरा शेयर से लिया, कंपनी B ने 4 लाख रुपए शेयर से लिया है, 6 लाख रुपए लोन से लिया है. वहीं कंपनी C ने 6 लाख रुपए शेयर से लिया और 4 लाख रुपए लोन से लिया. यानी द कैपिटल स्ट्रक्चर एमंग कंपनी A, B and C आर डिफरेंट, बट द टोटल कैपिटल एंड EBIT आर सेम फॉर कंपनी A, B and C रिस्पेक्टिवली. ओके सर, ये क्लियर हो गया कि यहाँ हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि विच कैपिटल स्ट्रक्चर इज प्रॉफिटेबल फॉर द कंपनी, यानी किस तरह का कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल होता है, और हम किस सिचुएशन में कहेंगे द फाइनेंशियल लीवरेज इज द फेवरेबल. फाइनेंशियल लीवरेज इज द फेवरेबल. व्हाट इज द फाइनेंशियल लीवरेज? द प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट इन अ टोटल कैपिटल. टोटल कैपिटल में डेप्ट का कितना फॉर्म है उसे फाइनेंशियल लीवरेज कहते हैं. और वो फाइनेंशियल लीवरेज तब फेवरेबल होगा, फेवरेबल कब होता है? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट या रेट ऑफ रिटर्न इज हायर देन द कॉस्ट ऑफ डेप्ट, या कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज 15%. सो हम इसको दोनों तरीके से आपको प्रूफ करके दिखाएंगे. सो पहला ये होता है कि हमें कहाँ ज़्यादा प्रॉफिट हो रही है, शेयर होल्डर्स को कहाँ ज़्यादा प्रॉफिट हो रही है. कंपनी A वाले के शेयर होल्डर को ज़्यादा प्रॉफिट हो रही है, कंपनी B वाले के शेयर होल्डर्स को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी C वाले के शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है. ये हमें पता करना है. यानी कैपिटल स्ट्रक्चर तीनों का डिफरेंट है, एंड वी फाइंड दैट कि विच टाइप ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर increase in the value of the shareholder, that is the higher rate of dividend provided on this dividend. Please note down this line कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर एक ऑप्टिमल कब कहलाता है. अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है, एक कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमल तब होता है जब वो शेयर होल्डर्स की प्राइस को इंक्रीज़ करता है, यानी उनकी वेल्थ को इंक्रीज़ कर सकता है. और कभी भी शेयर होल्डर की वेल्थ इंक्रीज़ तभी होगी जब उस पर रेट ऑफ डिविडेंड हायर होगा एज कंपेयर टू द अदर कंपनी. और अदर थिंग वी कैन से दैट जिस कंपनी का EPS सबसे ज़्यादा होगा उस कंपनी का, यानी हम कई तरीके चीज़ें हम कह सकते हैं. ROI ज़्यादा होगा, वहाँ हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को चूज़ करेंगे, या फिर EPS ज़्यादा होगा उसको चूज़ करेंगे, या जहाँ रेट ऑफ डिविडेंड ज़्यादा होगा वहाँ हम चूज़ करेंगे. सो प्लीज़ नोट डाउन कि हमें कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर चूज़ करना है. सो आज हम लोगों ने कैपिटल स्ट्रक्चर पे इसीलिए बात कर रहे हैं. सो हम लोग अब आते हैं इलस्ट्रेशन पे. द इलस्ट्रेशन में हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया कि 3 कंपनी हैं, तीनों की टोटल कैपिटल सेम है और कैपिटल स्ट्रक्चर डिफरेंट फॉर्म में है. कंपनी ने टोटल पैसा इक्विटी से लिया है, कंपनी B ने 40% पैसा शेयर से लिया है, 60% पैसा लोन से लिया है, एंड कंपनी C ने 60% पैसा शेयर से लिया है, 40% पैसा जो है वो लोन से लिया है. और तीनों कंपनी की EBIT सेम है. सो कंपनी के पास जो भी EBIT होती है, EBIT मीन्स ये फॉर्मेट भी आप लोग नोट कर लिए. पहले मैं आपको इसका एक फॉर्मेट प्रोवाइड कर देता हूँ.
कंपनी के पास जो भी EBIT होता है, EBIT मीन्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें वो सबसे पहले कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल पे द इंटरेस्ट, कंपनी सबसे पहले इंटरेस्ट पे करती है, फिर जो पैसा आता है उस पर वो टैक्स पे करती है। टैक्स का जो रेट होता है वो इसी पे डिसाइड होता है, इस फैक्टर पे डिसाइड होता है। फिर टैक्स देने के बाद जो पैसा आता है, दिस मनी इज़ अवेलेबल फॉर द शेयर होल्डर्स। ओके, तो कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। व्हाट इज़ EBIT? द EBIT मीन्स द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या विच कैन से द प्रॉफिट शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड उस प्रॉफिट पे हम सबसे पहले पे करते हैं इंटरेस्ट, द पेमेंट टू द डिबेंचर होल्डर और लोन payment, the interest on the loan, as well after that we paid the tax to the government on the earning after providing the interest. So इसीलिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक बात बताई थी कि जितना ज़्यादा हम टैक्स जितना ज़्यादा हम इंटरेस्ट पे करेंगे उतना ही कम हमें टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि इट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट पे करोगे तो आपकी टैक्स लायबिलिटी उतनी कम होगी, क्योंकि आप टैक्स हमेशा किस पे देते हो? प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट। यानी अगर आपके पास प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट में से पहले आप इंटरेस्ट पे कर देते हो डिबेंचर होल्डर को, लोन पे इंटरेस्ट पे कर देते हो, या अदर काइंड ऑफ मॉर्गेज पे अगर आप इंटरेस्ट पे कर देते हो, उसके बाद जो पैसा आता है उस पर हम लोग टैक्स पे कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट व्हेन अ कंपनी पे मोर एंड मोर इंटरेस्ट, सो द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द कंपनी इज़ रिड्यूस्ड। तो ये भी बात भी याद रखिएगा। आज का वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो उसको अपने दिमाग में रख लीजिए या कहीं कॉपी में नोट कर लीजिए। तो ये फॉर्मेट समझ में आया। अब लेट्स वी मूव टू द illustration. Okay sir, we have a sufficient information. So for the company A, we can see that for the company A, there's a no tax, there's a no debt capital, so कंपनी ए ने कोई इंटरेस्ट पे नहीं करेगा। कंपनी बी की लोन कैपिटल है, डेट इज 6 लाख। लोन कैपिटल मतलब उसने लोन से कितना लिया है? 6 लाख। उस पर उसे इंटरेस्ट कितना देना है? 15%, यानी उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा 90,000। 6 लाख मल्टीप्लाइड बाई 15%। फॉर द कंपनी सी ने क्या किया? 4 लाख रुपीज़ का डेप्ट लिया था, उसने लोन लिया था, और उस पर उसने 60,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट पे किया। सो आफ्टर वी फाइंड अर्निंग बिफोर टैक्स, दैट इज़ अ अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट। इसको हम कई सारे टर्म्स में यूज़ कर सकते हैं। अर्निंग बिफोर टैक्स मतलब एक ऐसे अर्निंग जिस पे टैक्स नहीं चार्ज हुआ है, या अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट यानी जिस पे इंटरेस्ट को हम लोगों ने चार्ज कर लिया। सो ए की अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट कितना है? 3 लाख रुपए, क्योंकि उसको तो कोई टैक्स पे इंटरेस्ट देना नहीं था। बी का 3 लाख में से 90,000 रुपये इंटरेस्ट दे दिया, तो बचा कंपनी के लिए कितना? 2,10,000 रुपये। कंपनी सी के लिए बचा 2,40,000। अभी तक आप देखोगे तो कंपनी ए बहुत खुश है, उससे ज़्यादा खुश, उससे कम खुश है सी, और सबसे ज़्यादा दुखी है बेचारा कंपनी बी। क्यों? कहोगे सर टैक्स देने के बाद कंपनी ए के पास बच रहा है 3 लाख रुपए, कंपनी बी के पास बच रहा है 2,10,000 रुपये, और कंपनी सी के पास 2,40,000 रुपये। आप यहीं पर सोचोगे अरे यार यहाँ तो कंपनी ये बहुत अच्छी है, उसकी 3 लाख रुपये प्रॉफिट बची हुई है टैक्स इंटरेस्ट देने के बाद, टैक्स नहीं इंटरेस्ट देने के बाद। आइए और आगे बात करते हैं। सपोज़ ये मान लीजिए कि आपका टैक्स का जो रेट है वो 50% है, यानी आपको गवर्नमेंट को टैक्स 50% देना है सब केस में, या कंपनी ए हो, बी हो, सी हो, सबको 50% टैक्स देना है। तो कंपनी ए कितना टैक्स देगी? 3 लाख का 50%, यानी 1.5 लाख रुपए दे देगी। कंपनी बी कितना टैक्स देगी? सर 1,05,000 रुपये। 2,10,000 का 50% निकालोगे तो 1,05,000 रुपये। कंपनी सी कितना देगी? 1,20,000 रुपये। 2,40,000 का 20%, यानी जब भी आप टैक्स निकालोगे वो अर्निंग बिफोर टैक्स का 50% होगा, जो है रेट ऑफ टैक्स गिवन इन द क्वेश्चन। बट यहाँ मैंने इलस्ट्रेशन लिया है, यहाँ पे कुछ चीज़ें सबके लिए सेम है, जैसे टैक्स रेट 50% सबके लिए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 15% सबके लिए है, टोटल कैपिटल सेम है, EBIT सेम है। डिफरेंट क्या है? बस कैपिटल स्ट्रक्चर। तो 10 लाख में कितना डेप्ट से और कितना इक्विटी से, बस यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। अब अगर आप डिस्कशन करिए टैक्स देने के बाद, तो ए के पास बचता है 1,50,000 रुपये, बी के पास बचता है 1,05,000 रुपये, सी के पास बचता है 1,20,000। अभी भी आप ये कहोगे कि सर कंपनी ए बहुत खुश होगी, कंपनी बी बहुत दुखी है, और कंपनी सी न ज़्यादा खुश है न ज़्यादा दुखी है, वो बीच में है, ए और बी के बीच में, क्योंकि उसके पास 1,20,000 रुपये बचे हैं। अब टैक्स की बात करिए। टैक्स क्या होता है? जो हम गवर्नमेंट को देते हैं।
अब आप तीनों में कंपैरेटिवली स्टडी करिए कि ए बी सी में किसको सबसे ज़्यादा टैक्स देना पड़ा। सर कंपनी ए को, तो कंपनी ए दुखी भी तो होगी। हाँ सर, कंपनी इज सैड, वाई? बिकॉज ही पेड मोर टैक्स, इट पेड अ मोर टैक्स एज कंपेयर टू द कंपनी बी एंड सी। यस, 1,50,000। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जो जितना ज़्यादा इंटरेस्ट देता है, अ कंपनी पेड मोर टैक्स, a company paid more interest, its tax liability is reduced। यानी जो जितना ज़्यादा इंटरेस्ट देता है उसका टैक्स लाइबिलिटी उतनी कम हो जाती है। अब आप कंपनी ए ने तो कुछ टैक्स ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं दिया था, इसलिए उसको 1.5 लाख रुपए टैक्स देना पड़ा। कंपनी बी ने 90,000 रुपये इंटरेस्ट दिया था, 100 से 1,05,000 रुपये देना पड़ा। और कंपनी सी ने 60,000 दिया था, इसलिए 20,000। यानी सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया था कंपनी बी ने, इसलिए उसकी टैक्स लाइबिलिटी सबसे कम थी। ओके, कंपनी ए का सबसे ज़्यादा टैक्स आया, क्यों? क्योंकि उसने एक भी रुपए इंटरेस्ट नहीं पे किया था। सो मेरी कई सारी लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। पहली चीज़ मैंने आपको ये एकदम क्लियर किया, व्हाट मैंने क्या बताया आपको कि जो जितना ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेगा उसकी टैक्स लाइबिलिटी उतनी कम होगी। यानी अ कंपनी विच पेड मोर इंटरेस्ट, इट्स टैक्स लाइबिलिटी इज रिड्यूस्ड। So in this situation, the company B paid 90,000 interest. That's why its tax liability becomes 1,05,000, which are lower than the company A and company C. तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई? यस सर, एक बार देख लीजिए आपने ए बी और सी का कैपिटल स्ट्रक्चर। ए बी आई टी 3-3 लाख रुपए। फर्स्ट ऑफ ऑल ए ने इंटरेस्ट पे किया कुछ नहीं, बी ने दिया 90,000, सी ने दिया 860,000। देयर आफ्टर वी कैलकुलेट द अर्निंग आफ्टर टैक्स और अर्निंग बिफोर टैक्स। फॉर ए 3 लाख, बी 2,10,000, फॉर सी 2,40,000, एंड देयर आफ्टर वी पेड the 50% rate of tax. Company A paid 1,50,000 as a tax, company B paid 1,05,000 as a tax, and company C paid 1,20,000 as a tax. So earning after tax for company A 1,50,000, for B 1,05,000, and for C 1,20,000. अब ये जो पैसा बचा ये किसके लिए है? ये मालिकों का पैसा है, क्योंकि इस कंपनी ने अब सब पेमेंट कर दिया, अब ये मालिकों का पैसा है। सो अगर आप देखो तो कंपनी ए के मालिक बहुत ज़्यादा खुश होंगे, कंपनी बी के फिर खुश होंगे और कंपनी फिर सी के खुश होंगे। मैं कह रहा हूँ नहीं, आपने गलत इंटरप्रेट किया है। कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं। सो जो दिखता है वो होता नहीं, उसके लिए मैं आपको इस वीडियो को जल्द से जल्द आपके जो कहते हैं ना क्लाइमैक्स वो प्रेजेंट कर देता हूँ। द लास्ट कंक्लूजन ऑफ दिस कि कृपया जो दिखे उस पर ना जाए। सो अगर हम बात देखें, अगर हम EPS कैलकुलेट करें, EPS मीन्स द अर्निंग पर शेयर, यानी एक कंपनी ने एक शेयर पे कितना कमाया। सो वी फाइंड दैट कि कंपनी ए के पास शेयर कितना था। कंपनी ए का शेयर था, अगर हम डिवाइड कर दें तो कंपनी ए हैज़ अ 10,000 शेयर, कंपनी बी हैज़ अ 4,000 शेयर, एंड कंपनी सी इज़ अ 6,000 शेयर। हाउ वी विल कैलकुलेट द शेयर? सो यू नो डैट कि 10 लाख रुपए का एक कैपिटल है, 100 रुपये का शेयर है, तो उसको डिवाइड कर दो तो कितने नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे? 10,000। कंपनी बी के शेयर हो जाएंगे 4,000 और कंपनी सी के शेयर हो जाएंगे 6,000। सो द नंबर ऑफ शेयर फॉर कंपनी ए 10,000, कंपनी बी 40,000 एंड कंपनी सी 60,000। इज दैट क्लियर? ओके। सो एट द एंड वी फाइंड दैट द EPS, मैंने आपको अमाउंट के अकॉर्डिंग बताया कि ए बी सी में ए की अर्निंग सबसे ज़्यादा है, फिर सी की है, फिर बी की है। सो इसके हिसाब से आपको जजमेंट लेना है। आपने यहाँ EPS निकाला। EPS कैसे निकाला? EPS का फॉर्मूला होता है द EPS दैट इज अर्निंग पर शेयर इज इक्वल्स टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ओके, द फॉर्मूला ऑफ EPS इज द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय number of equity share. What is the profit after tax for company A? That is 1,50,000. For company B 1,05,000. For company C 1,20,000. And number of equity share for company A, that is 10,000. For B 4,000 and for C 6,000. यानी कंपनी A ने 10,000 शेयर पे 1,50,000 रुपये कमाया है, कंपनी B ने 4,000 शेयर पे 1,05,000 रुपये कमाया, और कंपनी C ने 6,000 शेयर पे 1,20,000 रुपये कमाया है। सो वी फाइंड द EPS फॉर कंपनी ए 15 रुपीज़ पर शेयर, फॉर बी
26.25 पर शेयर एंड फॉर सी 20 पर शेयर। सो मैं आपको यहीं पे आपको प्रेजेंट करना चाह रहा था कि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसमें जो दिखता है उस पर नहीं जाते। अगर आपने कैपिटल स्ट्रक्चर देखा ऊपर, तो आपने ये फाइंड किया कि शुरू से लेके अंत तक ए बी सी में से टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बी सबसे ज़्यादा अच्छी रही, क्योंकि बी को कम से कम टैक्स देना पड़ा और उसकी ईपीएस भी सबसे ज़्यादा है। ईपीएस का मतलब क्या है? ईपीएस मीन्स द अर्निंग पर शेयर, यानी कंपनी बी को एक शेयर पे 26.25 रुपीज़ की प्रॉफिट हुई है, अर्निंग हुई है। दैट्स वाई द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी बी इज़ गुड एज कंपेयर टू द कंपनी ए एंड कंपनी सी। सो यहीं पे मैं आपको छोड़ के जाता हूँ, बिकॉज ऑफ प्लीज़ रिवाइंड ऑल दिस एस्पेक्ट ऑफ द इलस्ट्रेशन एंड जितने पार्ट्स इसके बचे हुए हैं, वी विल मूव टू द next video. I hope today we will study all the topics very easily. Apart from this, if you have any kinds of doubt or suggestion regarding this video, please ask me in the online classes as well as in the WhatsApp group. आज के लिए इतना ही, but the most important part इस illustration को दोहरा लीजिएगा। कल हम इसी illustration को और अच्छे से और डीप से स्टडी करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।